Students, now we are starting with chapter death of partner. So for death of partner, what are the steps to be followed? The question will be your balance sheet. The way we are doing it for admission of partner, in the same way we have to do. We transfer our partner's capital to his ledger by balance brought down. We distribute general reserve, reserve fund, profit and loss account, etc. to partner's capital credit side if given in liability, and if it is given on the asset side, then we will distribute to the debit balance. Other liabilities will transfer to the balance sheet liability side. Asset side will transfer all the asset to the asset side on balance sheet. For the adjustments, revaluation of the asset, if the value of the asset appreciated, we'll add it over here. Second effect, revaluation or profit and loss adjustment credit side. If the value of the asset reduce, we'll minus from here. Second effect, debit side. For liabilities, it is a reverse case. If the value of the liability reduce, it is a profit for us, we write on credit side. If the value of the liability increase, it is a loss for the firm, we write on the debit side. The most important working note is in death of partner is deceased partner's share of profit up to his or her death. This is a new working note in this particular chapter. We will learn by doing this sum. Now we are starting with sum. Rekha, Menka and Mukta were partners in a business sharing profit and losses in the ratio 2:1:1 respectively. Their balance sheet is on 31st March 19. So given balance sheet is on 31st March 19. We transfer capital of all the three partners by balance brought down 60,000, 70,000 and 34,000. Creditors and bills payable, will write it down in balance sheet in outer column as there is no adjustment. General reserve will distribute to the partners in the ratio. Now in admission we were distributing only to the two partners because it is a old and new partners concept. Over here all the partners are old, so we will distribute to all the three partners in the ratio of 2:1:1. That is 8,000, 4,000 and 4,000. Then come to the asset side. Plant and machinery adjustment is there, we will write in inner column. Debtors again adjustment is there, we will write in inner column. Furniture no adjustment, directly outer column. In bank there is only one adjustment, so I am directly posting in asset but written in inner column. So this is how we done with our posting part. Now come to the adjustment. Mukta died on 1st of July. So your balance sheet date will be on the date of death of partner. जो तारीख को पार्टनर मर गया वो तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो ये सब में बैलेंस शीट का डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1st of July 2019. So all these things we are doing it on 1st of July 2019. Plant and machinery was valued at 70,000 and RDD to be created of 2,000. Appreciation on plant and machinery 10,000, 70,000. Second effect, buy plant and machinery 10,000. Debtors का वैल्यू कम हो गया, RDD less 2,000. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 2000. यहाँ पे क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन बोथ इज सेम. The drawing of Mukta up to date of her death amounted to rupees 10,000. तो 3 महीने के लिए मुक्ता ने कितना ड्राइंग किया है? 10,000. एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, मुक्ता के कॉलम में. एंड सेकेंड इफेक्ट, as she is withdrawing the money, so बैंक अकाउंट में से कम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बाय ड्राइंग सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिया है. आप सेपरेट लेजर बना के भी लिख सकते हो. बुक इसमें बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्राइंग 10,000 एंड द बैलेंस विल बी 50,000. एक ही एडजस्टमेंट है इसीलिए डायरेक्ट एसेट में पोस्ट किया एक लाइन छोड़ के. सो ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैंक के में से कम होगा. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 1,000. एक इफेक्ट आपके पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और इसका सेकेंड इफेक्ट हम पीएनएल सस्पेंस, जो डिसीज पार्टनर शेयर का 3 महीने का जो प्रॉफिट है उसमें से इसको माइनस करेंगे. तो जब ये फाइंड आउट करेंगे तब आएगा. तो यहाँ पे आपको स्टार करके रखना है एग्जाम में
और इसकी सेकेंड इफेक्ट कब आएगी, जब हम बिजनेस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसकी जब इफेक्ट देंगे तब इसकी सेकेंड इफेक्ट लिखना है। तो इसको आप एग्जाम में स्टार करके रखना, सेकेंड इफेक्ट पेंडिंग। नाउ एडजस्टमेंट 4, her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of profit for the last 4 years which were 1,50,000, 1,30,000, 70 and 50. This is the same like your admission of partner working note. Total profit, step 1 4 lakh rupees, step 2 average profit 4 lakh divided by average profit upon numbers of year of profit, 4 lakh divided by 4 1 lakh. Step 3 goodwill of the firm, average profit into number of year of purchase. Now over here there are two more options. What they can give you in the question, twice the average profit or sometime equal to average profit. So over here it is given 3 years purchase. So I am writing number of year of purchase. Suppose they will tell you the twice the purchase, twice the average profit. Illustration 2 में उन्होंने twice the average profit लिखा है, तो हम average profit into 2 करेंगे, कुछ सम में देंगे goodwill of the firm is equal to average profit. So your step number 2 and 3 answer will same. Over here into 3 है, so 1 lakh into 3 goodwill of the firm rupees 3 lakh. And the step 4 this is partner share of goodwill, goodwill of firm into her share, that is 3 lakh into 1 upon 4 which is equal to 75,000. So Mukta's share of goodwill is 75,000. Now we are giving credit to her. So where what is the effect? What is the journal entry? Goodwill account debit to Mukta's capital account. तो Mukta's capital के क्रेडिट में हम बाय गुडविल 75,000 लिखेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में हमको दिखाना है गुडविल 75,000। गुडविल सिर्फ रेज हुआ है, राइट ऑफ नहीं हुआ है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द सेकेंड इफेक्ट। इसकी सेकेंड इफेक्ट लिखना भूलना मत बैलेंस शीट एसेट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्किंग नोट, the deceased partner share of profit up to date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. पीछे के 2 साल का प्रॉफिट को कंसीडर करके ये वर्किंग नोट बनाना है। अब पीछे के 2 साल मतलब लास्ट के 2 फिगर लेना, यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 3rd and 4th, नहीं भी दिया होगा तो भी आप पीछे के 2 साल लोगे। How will solve this working note? The name of the working note is deceased partner share of profit up to her death. ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कहाँ तक? जब तक वो जिंदा थी तब तक का उसको प्रॉफिट शेयरिंग देना है। तो ये साल में लास्ट ईयर का तो हिसाब खत्म हो गया, ये साल में वो कब तक जिंदा थी? 1 जुलाई तक। डेट काउंटिंग, मंथ काउंटिंग में मिस्टेक मत करना। 1 जुलाई यानी 30 जून। साल कभी चालू होता है? अप्रैल से। अप्रैल, मई एंड जून। तो करंट ईयर में जिस साल के लिए हम ये बना रहे हैं वो साल में मुक्ता 3 महीने ही जिंदा थी। सबसे पहले स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 into 2 60,000। स्टेप 2 हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेशियो, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। फिर उसके हिस्से का प्रॉफिट 60,000 into 1/4 15,000। और एक स्टेप आगे जाना है, क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का प्रॉफिट है, वो पूरा साल नहीं थी। वो कब तक थी? ओनली 1 जुलाई। तो और एक स्टेप आप आगे जाओगे 1 अप्रैल to 1 जुलाई विच इज 3 months। तो प्रॉफिट विल बी गिवन इन करंट ईयर ओनली फॉर 3 months। So 15,000 into 3/12 which will give you 3,750। So this is how you will divide this working note in 3 steps. Steps 1 average profit which will give you profit of the firm. Step 2 this is partner share of profit, and step 3 up to her death of profit. This is how you will divide into 3 steps. Sometimes students यहाँ पे ही रुक जाते हैं, यहाँ पे नहीं रुकना है, ये पूरे साल का है, इसके आगे आपको एक स्टेप जाना है। So this is the important working note for death of partner. So 3,750 आपको उसके हिस्से का प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई मिल गया। इसकी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट एक इफेक्ट, और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट एसेट। व्हाट वी विल राइट? P&L सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट है। एक इफेक्ट आपने यहाँ पे दी 3,750। सेकेंड इफेक्ट के टाइम पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने स्टार करके रखा था, सेकेंड इफेक्ट बाकी है।
वो आप यहाँ से माइनस करोगे, ये 1000 रुपीज, 3750 माइनस 1000 कम्स टू 2750. ठीक है. Now all the things done. Now we start with closing the sum. Credit side is more, so it is a profit. We distribute to the all partners. We distribute to the all partners in the ratio given. 4000, 2000, 2000. Second effect, profit and loss adjustment profit. Done. Now we'll close the partners capital. First we'll close whose capital, जो मर गई है वो, यानी मुक्ता का टोटल करेंगे 118750. This side 11,000 and the balance is this much. Where this will transfer, not balance correct down, because अभी वो आपके पार्टनर नहीं है तो उसको कैपिटल नहीं लिख सकते. तो क्या लिखेंगे आप? मुक्तास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. सो अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो वी आर ट्रांसफरिंग हर कैपिटल इनटू लोन अकाउंट. तो मुक्तास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 107750 बैलेंसिंग फिगर, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी में. मुक्तास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. विल क्लोज अदर टू पार्टनर्स, दे आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनका क्लोज करेंगे, उनका बैलेंस हम कैपिटल में लिखेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ समटाइम व्हाट हैपेंड, ये जो पार्टनर्स जो मर गई है वो पार्टनर का कैपिटल हमको पे करने भी बोलेंगे क्वेश्चन में. तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आप लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट. हमारे पास पैसा है तो वी आर पेइंग हर कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट आपके बैंक में से उतना पैसा कम हो जाएगा तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में नहीं दिखेगा, सिर्फ कैपिटल दिखेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इन similar kind of sum in illustration 2 there is only one change. What is that change? गुडविल जो है वो रेस करके रिटर्न ऑफ करना है. अगर आप पेज नंबर 190 में आएंगे तो लास्ट में लिखा है, लास्ट लाइन, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. दैट मीन्स व्हाट? गुडविल बताना है और राइट ऑफ भी करना है. वो केस में आप क्या करेंगे कि वहां पे पार्टनर है राकेश, महेश और मुकेश डाइड. ठीक है. और आपका गुडविल का जो अमाउंट है वो 4000 है. तो ये जो 4000 है गुडविल का अमाउंट, ये क्या होगा? ये दोनों पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो मुकेश को उसका गुडविल का शेयर देंगे और वो गुडविल का जो रिटर्न ऑफ है वो अपने अकाउंट में लेंगे. तो आप क्या करोगे? जो 4000 है उसको 2400 और 1600, यही हमने 75,000 के लिए दिया है, उसका गुडविल उसको दे दिया, बट यहाँ पे शेयरिंग रेशियो में देंगे 2400 1600. जो कॉलम में अमाउंट लिखा है वो कॉलम में वो पार्टनर का नाम नहीं आएगा, तो बाकी दो पार्टनर का नाम लिखेंगे. और इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे देंगे? यहाँ पे जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है 2400 और 1600. अब ये दो कॉलम में आपने जो लिखा है तो यहाँ पे आप लिखोगे टू मुकेश कैपिटल, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय राकेश एंड महेश कैपिटल. इतना ही चेंज है इलस्ट्रेशन 2 में, बाकी इट्स एब्सोल्युटली सेम. बोथ द वर्किंग ऑन द सेम लाइन, यू हैव टू ड्रॉ इट एंड प्रैक्टिस इट. द ओनली चेंज इज गुडविल वाला पार्ट. एंड वन मोर थिंग इज आरडीडी. दे ऑल डेटर्स वेर गुड, मतलब आपका डेटर्स का जो आरडीडी अभी रिक्वायर्ड नहीं है. हमने जो 16,000 माइनस 2,000 करके 14,000 लिखा था, बट हमको पूरा 16,000 मिलने वाला है. करेक्ट है. तो आपके डेटर्स की वैल्यू वापस बढ़ गई. तो यहाँ पे आप 16,000 लिखेंगे और उसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. आपके बैलेंस शीट में आपने डेटर्स 16,000, 2,000 और 14,000 ऐसा आप लिखोगे. आरडीडी वापस ऐड कर दोगे आरडीडी को 2,000, 16,000 और अब ये 2,000 की सेकेंड इफेक्ट आप P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में दे देना. सो दिस इज हाउ योर डेटर्स विल रिमेन ओरिजिनली 16,000 एंड सेकेंड इफेक्ट P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड. So this particular part is not of current illustration. It is of
Illustration 2. Box part. This for illustration 2 reference. Otherwise illustration 2 is absolutely same.